Hello kids, today we are going to learn 10th standard 4th chapter effect of electric current. In the last video we learned about a Fleming left hand rule. When the Fleming left hand rule, when the thumb, index finger and middle finger stretch in a perpendicular direction, the thumb show the force on the conductor, index finger show the direction of magnetic field and middle finger show the direction of current. Now, and where Fleming left hand rule are used, so in an electric motor we are use a Fleming left hand rule. So all these points are covered in a last video. Now today we are going to learn a Fleming right hand rule. So Fleming right hand rule means what? When the right hand with the right hand, thumb, index finger and middle finger stretch in a perpendicular, then thumb show the motion of conductor. Like when will be the induced current in a electrical conductor coil be maximum? It will maximum when the direction of motion of electric conductor is perpendicular to the magnetic field. In order to show the direction of the induced current, Fleming right hand rule is very useful. Stretch the thumb, index finger and middle finger in such a way that they will be perpendicular in each other. In this position, thumb indicate the direction of motion of conductor. सेम जैसे लेफ्ट हैंड रूल का था वैसे ही राइट हैंड रूल का भी है. Thumb show the motion of conductor, direction of motion of conductor. Index finger the direction of magnetic field and middle finger show the डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. यहाँ पे याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट. नाउ दिस रूल इज नोन एज ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में बताया है. इंड्यूस्ड करंट इंपॉर्टेंट वर्ड आना चाहिए राइट हैंड थंब रूल में. Now alternating current and direct current. So far we have learned about non-oscillatory current flowing in a one direction in circuit from the cell to the cell. Such as current is called a direct current as against the current changing in magnitude and direction after equal interval of time, which is called alternating current. अगर करंट डायरेक्टली सेल टू सेल पास हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, सो वो क्या है, डायरेक्ट करंट. अगर करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इंटरवल चेंज हो रहा है तो वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट. सो इन आवर होम वी आर यूज अल्टरनेटिंग करंट. अगर डायरेक्टली सेल टू सेल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द डायरेक्ट करंट. ये डिफरेंस बिटवीन में याद रखना है, डेफिनेशन पहले लिखोगे एंड देन एग्जाम्पल. Direct current means what? The electric current flow in a one direction and from the cell to cell, that is the direct current. ये याद रखना है. and equal interval में अगर flow हो रहा है current, that is the alternating current. Now the direct current can increase, can be stable or can reduce also. Direct current को increase भी कर सकते हैं, stable भी रख सकते हैं, reduce भी कर सकते हैं. But it is not oscillatory. वो oscillator नहीं होता. जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है अप एंड डाउन, तो वो सब क्या, oscillatory motion है. And this is show graphically in a figure. Alternating current is a oscillatory. So again second point में लिख सकते हो, the direct current can increase, stable and reduce, but we can't, it is not a oscillatory. But alternating current is a oscillatory. As shown in the graph 4.19, it increase to maximum then reduce to zero. ये इंक्रीज हो सकता है एंड रिड्यूस भी हो सकता है टू ज़ीरो. एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूस टू ज़ीरो. मतलब पहले एक बार इंक्रीज होगा ज़ीरो से, फिर अगेन ज़ीरो पे आएगा एंड फिर उसके बाद डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा. मतलब रिवर्सिबल. आप
So -1, 2 have been seen used to show the reverse direction, the oscillatory of the alternating current in a sinusoidal manner with the time, and hence show by the symbol and direction. Direct current flow in a one direction, but alternating current flow in a periodic manner in a one cycle is forward and reverse direction. Alternating current directly flow होता है in a one direction, and अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो होगा, पीरियोडिक मैनर में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में. In India, in the power station generating electricity, one cycle change in a 1/550 second, that is the frequency of alternating, is a 50 hertz. So frequency of alternating, what is the frequency of alternating current in a electrical appliances in a home? So 50 hertz, 50 साइकिल पर सेकेंड, वो 50 साइकिल कंप्लीट करेगा एक सेकेंड में. व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, द बेनिफिशियल टू हैव इन अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म इट रिजल्ट इनटू द मिनिमम पावर लूज ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन. अगर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करना है, ट्रांसमिटेड के लिए, तो हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, जिससे लॉस ऑफ करंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, पावर बहुत कम वेस्ट होगा. द होम सप्लाई इज of the alternating current. We have learned in a previous class about the precaution to be taken while using the electricity. कौन कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं वो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में स्टडी किया था. ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, रबर वगैरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते टाइम पे, इसके प्रिकॉशंस है. नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर, वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट based on electromagnetic induction. The current produced in this experiment was a very small magnitude. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टडी किया था, उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में है. बट द सेम प्रिंसिपल कैन बी हार्नेस टू बी यूज अ मैनकाइंड टू प्रोड्यूस अ लार्ज करंट. हियर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एक्सेल, देयर बाय द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इट रोटेट द एक्सेल एंड करंट आर प्रोड्यूस, आर इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस. ना 4.20 शो द कॉपर वायर कॉइल ABCD. ये अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बता रहे हूँ. पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर. एंड copper wire coil ABCD kept between the two pole pieces of magnet to end of the coil are connected with the conducting a ring R1 R2 by carbon brushes, both the rings and fixed to the axle. मतलब ABCD कॉपर वायर लेना है जो मैग्नेट पीस ऑफ मैग्नेट के पोल्स की इन बिटवीन होगा, बीच में होगा. रिंग R1 R2 है, कार्बन ब्रशेस है, एंड रिंग फिक्स्ड है एक्सेल से, एंड बट देयर इज अ रेजिस्टिव कोटिंग इन बिटवीन द रिंग एंड एक्सेल. रिंग एंड एक्सेल में रेजिस्टिव कोटिंग है, अगर वो नहीं रहेगा तो दोनों शॉक लगने के चांसेस है. सो रिंग एंड एक्सेल में रेजिस्टिव कोटिंग है. द एक्सेल इज रोटेट विद द हेल्प ऑफ मशीन फ्रॉम आउटसाइड. एक्सेल रोटेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल ABCD स्टार्ट रोटेटिंग. एंड एक्सेल की ही हेल्प से जो कॉइल है वो ABCD वो रोटेट होगा. द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वानोमीटर. जो कार्बन ब्रशेस है वो कनेक्टेड किससे, गैल्वानोमीटर. एंड गैल्वानोमीटर आर यूज टू मेजर अ करंट को मेजर करने का काम क्या है, गैल्वानोमीटर का. सो अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर में गैल्वानोमीटर अगर सर्किट डायग्राम में गैल्वानोमीटर यूज़ किया है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो ये याद रखना. यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ये क्या है, गैल्वानोमीटर है. अगर डायग्राम में ये गैल्वानोमीटर दिखाई दे रहा है तो विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो यहाँ पे लिख देना. विच टाइप ऑफ डिवाइस, तो यहाँ पे तुरंत लिखना इलेक्ट्रिक जनरेटर है. ये गैल्वानोमीटर से आइडेंटिफाई करोगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है या इलेक्ट्रिक मोटर है. सो अगर ये दिया हुआ है तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर. So B1 B2 are connected to the galvanometer which show the direction of current in the circuit, and upon rotating the axle the branches AB goes up and branches CD goes down. जैसे एक्सल रोटेट होगा, ब्रांच AB अपोर डायरेक्शन में जाएगा एंड
ब्रांच सी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट इज द कॉइल ए बी सी डी रोटेट क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड रूल में कैसे रोटेट हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर में कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज हो रहा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होगा, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे देखना है, according to the Fleming right hand rule, electric current is produced in the branches A, B and C, D in the direction A, B and C, D. Thus the current flow in a direction A, B, C, D as shown in the arrow. In the external circuit of current flow from B to B1 and through the galvanometer. galvanometer से जो current flow होगा वो कैसा होगा, B to B1 through the galvanometer. If instead of one loop coil consist of several turn in the use, तो current of magnitude several times flow. अगर number of coils यूज किया, अगर एक वन लूप यूज किया है तो वन लूप ही एक ही टर्न होगा, बट अगर नंबर ऑफ कॉइल्स यूज किया है तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. द current of magnitude several times flow. After half rotation, the branch AB take place of branch CD and branch CD take position of AB and the induced current goes on DCBA. मतलब यहाँ वहाँ पर हाफ रोटेशन हो रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर में हाफ रोटेशन हो रहा था, बट इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है, हाफ रोटेशन नहीं हो रहा है, फुल रोटेशन है. हाफ रोटेशन मतलब ए टू बी, तो ए बी प्लेस ले लेगा सी डी का एंड सी डी प्लेस ले लेगा ए बी का, एंड अगेन करंट फ्लो फ्रॉम डी सी बी ए. सो ऐसे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते रहेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इन इलेक्ट्रिक जनरेटर. But the branch BA is always contact with the brushes B2 and branch DC is contact with the B2. Hence the external circuit current flow from B1 to B2. जैसे पोजीशन चेंज करेंगे तो B1 से B2 में करंट फ्लो होने लगेगा, एंड द पोजीशन ऑफ प्रीवियस हाफ रोटेशन दिस रिपीट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस. और ये हमेशा हाफ हाफ रोटेशन में ये रिपीट होते रहेगा एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ एसी जनरेटर. इसे अल्टरनेटिंग जनरेटर भी कहते हैं. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. इलेक्ट्रिक जनरेटर मीन्स व्हाट, अल्टरनेटिंग जनरेटर आल्सो, एसी जनरेटर भी इसे बोलेंगे. क्यों, क्योंकि हाफ हाफ रोटेशन के बाद ये रिपीट होते रहेगा प्रोसीजर, और जिससे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम अल्टरनेटिंग जनरेटर भी कहते हैं. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है, सेम कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं, बट यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज हो रहा है, और जो एक्सेल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंड हाफ हाफ रोटेशन में ये ए बी रिप्लेस कर रहे हैं सी डी से, एंड सी डी रिप्लेस कर रहे हैं ए बी से, और अगेन डी सी बी एक डायरेक्शन में मूव होगा करंट, एंड B1 टू B2 एक्सेल रोटेट होगा. सो हाफ हाफ रोटेशन में ये रिपीट होते रहेगा एक्सपेरिमेंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम अल्टरनेटिंग जनरेटर कहते हैं. नाउ व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डायरेक्ट जनरेटर, DC generator. The DC does not change the direction in the external circuit. To achieve this, the split ring is fixed on the axle like a split ring used in an electric motor. So इलेक्ट्रिक मोटर को हम डायरेक्ट जनरेटर भी बोल सकते हैं. Now because of this arrangement, the branches of coil going upward always in a contact with the one brushes, and branches going in a downward in always contact with the other brushes. Hence the current flow in one direction in external circuit. This is why the generator is called as a DC generator. जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में कनेक्शन है वैसे ही इसमें कनेक्शन होगा, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव होगा करंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट जनरेटर.